महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। परमार्थ कैलाश मानसरोवर विश्व शांति यात्रा के पिछले एपिसोड में आपने देखा सभी तीर्थ यात्री कैलाश परिक्रमा करते हुए डेरापुक पहुंचे और डेरापुक स्थित परमार्थ कैलाश मानसरोवर आश्रम में परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी से आश्रम के बारे में उनके विचार सुने और सभी तीर्थ यात्रियों ने शिव स्तुति में भाग लिया। और इसके पश्चात भारी हिमपात और प्रतिकूल मौसम के कारण कैलाश परिक्रमा को डेरापुक में ही संपन्न कर सभी तीर्थयात्री मानसरोवर स्थित परमार्थ मानसरोवर आश्रम वापस लौट आए। अब देखिए आगे। For those of us who went to Dirupuk, returned from Dirupuk today, I just want to say one small thing about that before we have the divine words of wisdom from our revered masters. The punya, the blessings, the grace that come to us from completing the parikrama of Kailash come not merely from putting one foot in front of the other on a dirt path around a mountain. The blessings, the punya, all of that comes from being close to God. The reason for doing the parikrama is that there's no way to get closer to Kailash than that. We can't go up and put our arms around it and hug him. We can't go and rest our head against the side of Kailash and be children in his lap. So the closest way that we can get to God in the form of Mount Kailash is to perform this parikrama. The punya that we get, the blessings that we get, come not from the trekking expedition, but from that closeness to God that comes from living for so many hours directly along the path around the mountain. So I feel that all of us, whether you're part of the group that came to Dirupuk or part of the group that sat here saying prayers and chanting mantras for the group that had gone on parikrama, if every one of us is closer to God now than we were yesterday morning, then our parikrama has been a success. Then we've received the blessings and the grace that we were intended to receive. It's been truly a wonderful experience to spend the last so many days with all of you, to really become a family, the children of our revered masters, moving in their shelter, in their lap, with their guidance and with their blessings. And I pray and I know that this feeling of family is not going to go away just because some people are flying off to USA, some are going back to South Africa, some are going back to India, others are going back to London. That feeling of having undertaken this journey together will stay with us forever. So thank you all for being part of our family and for allowing us to be part of your family. I'd now request Acharya Balkrishnji to please bless us with his words of wisdom. Om Swasti Pantha Manucharim
सूर्यचन्द्रमसाविव पुनर्दधताघ्नता जानता संगमे मही। परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय शास्त्री जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी संतोष देव जी महाराज और परम आत्मीय सम्माननीय बहन भागवती जी और यहाँ पर उपस्थित सभी आध्यात्म पथ के पिपासु पवित्र आत्माओं, आज हम सबको यात्रा पर निकले हुए लगभग सप्ताह से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं। यह संतों की सहजता, संतों की कृपा और उनकी दिव्यता की वजह से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमारे साथ में रहे। जिस तरह से माँ अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोच सकती है, माँ अपने आप गीले वस्त्रों में सोकर के सूखे वस्त्रों में अपने संतति को, अपने पुत्र पुत्रियों को सुलाती है। संतों के लिए तो कहा कि संत तो माँ से भी बढ़ कर के होते हैं। शायद उस रूप को आपने यहाँ कुछ महसूस किया हो, कुछ देखा हो, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि मैं भी वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, बचपन से ही संतों का सानिध्य मुझे मिला और आज जहाँ भी मैं पहुँचा हूँ, प्रभु की कृपा और संतों के आशीर्वाद के सिवा कुछ भी नहीं है इस जीवन में। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज मेरे लिए वो भी माँ से बढ़ कर के हैं। हर क्षण, हर पल, हर सेकंड वह मेरे लिए सोचते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। स्वामी जी महाराज से बहुत पुराना मेरा संबंध नहीं है, पर जब से हम मिले हैं, स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी का सानिध्य भी, स्वामी रामदेव जी महाराज ना भी हों, मेरे लिए उसी रूप में स्वामी जी का प्यार, आत्मीयता और एक अनन्य मेरे प्रति, जैसे छोटों के लिए बड़ों का जो कर्तव्य रहता है स्वामी जी निभाते हैं, और छोटे होने के नाते जो उत्पात हमें करना चाहिए उसमें मैं कहीं कमी नहीं छोड़ता हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है। और जहाँ तक बात रही यात्रा की, आप सब लोग बहुत व्यस्त हैं, बहुत दूर दूर से आप लोग आए और हम सब लोग, शास्त्र कहता है अयम निजः परो वेति गणनाम तु लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। बहुत हम लोग जब दुनिया में जाते हैं ना, आप महसूस करेंगे, मैं देख रहा था, महसूस कर रहा था, जब आप घर में जाते हैं तो आप अपने सगे बच्चे को भी अपना वस्त्र दे करके शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे भाई तू अपना कपड़े पहन, ये मेरे वाला है, इसको मत छूना, मत छेड़ना, क्योंकि अयम निजः परो वेति, ये मेरा है। मेरे की जो सीमा है स्वयं से प्रारंभ होता है। हम अपने आप से शुरू करते हैं, फिर परिवार पे जाते हैं, परिवार से फिर समाज पे जाते हैं, समाज से फिर जाति पर जाते हैं, फिर देश पर जाते हैं। कहीं ना कहीं हमने सीमाएं बांधी हुई हैं बहुत सारी, कि ये मेरा है, ये दूसरे का है। तो आपने महसूस किया होगा जब हम यहाँ आए तो हमारी वो सीमा ख़त्म थी। आप बहुत भिन्न भिन्न देशों से हैं, भिन्न भिन्न मान्यताओं को मानने वाले हैं, भिन्न भिन्न आपकी पारिवारिक स्थिति है, भिन्न भिन्न आपकी आर्थिक स्थिति है। यहाँ सब कुछ खत्म हो गया था। यहाँ तो उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा की, आपकी संवेदना मानसरोवर के लिए और कैलाश के लिए चल पड़ी, और मध्य में निमित्त बने श्रद्धेय स्वामी जी ऐसे संत। तो वहाँ खत्म हो गया। वहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम, हम एक घर की तरह से रहे। एक को ठंड लगी, दूसरे ने अपना जैकेट उठा करके दे दिया,
एक को आवश्यकता थी वस्त्र को, दूसरे ने उठा करके दे दिया। हम इस भाव को यदि निरंतरता से जीवन भर बना के रह सकें तो मैं समझता हूँ कि आपसे बड़ा तपस्वी और योगी कोई नहीं होगा। ये छोटी बात नहीं है। यहाँ वो भाव सहजता से क्यों आते हैं? जिस दुनिया से आप आए हो वहाँ जाओगे तो ये भाव बना रहे, ये भी एक बहुत बड़ी आपकी तपस्या होगी और उस तपस्या की सफलता होगी। ये हम बनाएं। जो भाव हमारे यहाँ सहजता से बनते हैं वो हमेशा बनी रहे। परमात्मा से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से प्रार्थना करिए। पवित्र मानसरोवर में आपने डुबकी लगा करके भगवान से बहुत मांगा होगा। सद्य स्वामी जी संतों के चरण में आप बैठे हैं। इतने दिन आपको दुनिया में रहते तो नीचे स्वामी जी भी नहीं मिलते हैं। मेरा जैसा छोटा सा नन्हा सा प्राणी भी नहीं मिल सकता आप लोगों को। आप हरिद्वार में मिलने आओगे तो शायद मैं मिल भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे यहाँ 6000 आदमी हर रोज़ आते हैं और 6000 आदमी से मैं 6-7 आदमी से मिल सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। लोगों के लिए ही काम करता हूँ मैं। सुबह से लेकर के शाम तक 16 से 18 घंटा हम काम करते हैं। ना अपने घर बसाने के लिए काम करते हैं, घर बसाया नहीं, और माँ बाप के लिए कुछ किया नहीं, दुनिया के लिए ही करते हैं। पर मिलना मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे भीड़ में आप लोग होते हैं। आज थोड़े से लोगों में ही आप हैं और आपके बीच में हम हैं। इसी तरह से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कितनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं, कितने इनके कर्तव्य हैं। इतनी सहजता से, सरलता से और अनायास बिना प्रयत्न के ये आपको उपलब्ध है। ये भी आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। जहाँ तक यात्रा की बात रही, बहुत सफल रही यात्रा। मैं जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे वो डीरापूक से, एक घटना मुझे बहुत पहले कभी कहानी पढ़ी थी, वो कहानी याद आ रही थी। कोई आदमी हमारी तरह से शायद हिमालय की यात्रा कर रहा था। गडरिया जैसा आज आपने देखा होगा, भेड़ चढ़ा रहा है, कोई बकरी चरा रहा है, कोई अपने याक वगैरह लेकर के चल रहा है। तो उससे उस आदमी ने पूछा, जैसे हम लोग पूछ रहे थे ना कि मौसम कैसा रहेगा, उसने कहा कि ये बताओ मौसम कैसा रहेगा। अब ऊपर जा रहे हैं हम लोग, चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, तो गडरिया ने कहा मौसम, आप मुझसे मौसम पूछते हो, मौसम तो वैसा ही रहेगा जैसा मैं चाहूँगा। उस आदमी ने सोचा, बड़ा अहंकारी है, अनपढ़ सा गवार सा लगता है, कह रहा जैसा मैं चाहूँगा वैसा मौसम रहेगा। उसने कहा नहीं, तुम क्या बता रहे? बोले हाँ, जैसा मैं चाहूँगा मौसम वैसा ही रहेगा। तो बोले भाई तू ऐसा कर। उसको समझ में नहीं आई बात, वो सोचने लगा ये क्या बोल रहा है। बहुत देर बाद फिर मुझे सोचा इसे पूछ लूँ। बोले भाई तो इसका ये अर्थ बता दे कि तू जैसा चाहेगा वैसा मौसम कैसे रह सकता है। बोला बात कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मौसम वैसा ही रहेगा जैसा भगवान चाहेगा, और जो भगवान चाहता है उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहता। इसलिए मौसम वैसा ही रहेगा जैसा मैं चाहूँगा। हम लोग गए थे, बस शिकायत कि हम यात्रा नहीं कर पाए, हमारी यात्रा पूरी हुई। भगवान शंकर के इस कैलाश के दर्शन नहीं कर पाते तो आप तभी तो आपको जाना पड़ता। हर दिन से आप देख रहे हो, पूरी दिखा दी उसने, और हमने तो 3 तरफ से देखा। तो हम वो सौभाग्यशाली प्राणी हैं। और जीवन के अंदर भी समर्पण सीखें। संत हमें समर्पण सिखाते हैं। व्यवहार में, कर्तव्य में, जीवन में समर्पणता होनी चाहिए प्रभु के प्रति। इतनी एक निष्ठा, आप इसीलिए आए हैं अपने व्यस्ततम कार्य में से छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके कि चलो वहाँ चलेंगे, कुछ ले करके आएंगे। इससे बढ़िया हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो भगवान ने जितना हमें दिया, क्या वो कम है? फिर भी हमारे अंदर आग्रह है कि हम घूम नहीं पाए। अरे पत्थरों को ही चक्कर लगाने से भगवान नहीं मिला करता है। संवेदनाओं के हिसाब से आप जितना संवेदनशील बनेंगे, समझ लेना भगवान आपके पास हरदम हर क्षण है। परमात्मा हमसे कभी दूर नहीं है, दूर हम परमात्मा से हैं। उस दूरी को हमें मिटाना है। भगवान तो हर क्षण हर पल सबको दे रहे हैं, अनवरत दे रहे हैं। हमारी अंजलि छोटी है, हमारी मुट्ठी छोटी है, इसलिए हमारी मुट्ठी में आ नहीं पाती। इसमें परमात्मा का दोष नहीं है, दोष हमारा है। बस इतना हम समझ लें अपने जीवन के अंदर, और कभी भी भगवान के सामने भी हम कभी भी शिकायत लेकर के ना जाएं। एक दिन मैंने और कहा था आप लोगों को, या तो हम शिकायत लेकर के भगवान के पास जाते हैं, या तो इच्छा लेकर के भगवान के पास जाते हैं।
क्या मेरी समस्या भगवान को पता नहीं है? मेरी आवश्यकता प्रभु को पता नहीं है? एक बार मेरे बचपन से बहुत रुचि रही है संतों के सानिध्य में जाने का। कभी कभी जैसे सुल्फैया फक्कड़ से पड़े भी रहते हैं, मैंने कभी उनके प्रति भी घृणा नहीं की। जब तक आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हो, जब आपके अंदर किसी के प्रति श्रद्धा भाव जागृत नहीं होता है, तो घृणा करने का भी आपको अधिकार नहीं है। सौभाग्यशाली है आपको यदि श्रद्धा भाव जगे। श्रद्धा भाव नहीं आता है तो उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, घृणा भाव मत लाओ। तो ऐसे एक फक्कड़ सा साधु बैठा उधर गंगा जी के किनारे हरिद्वार में सुल्फा पी रहा था। वो मैं गया, बुजुर्ग थे। मैं कहा महाराज जी ये बताओ कि भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं 2-3 ही प्रश्न पूछा करता था। एक तो सबसे पहले साधु को देखता था तो ये पूछता था कि तुम साधु क्यों बने, क्योंकि मुझे लगता था मुझे साधु बनना है, तो सबसे पहले ये पूछता था। तो बड़ी विचित्र कहानियाँ थी, बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा महाराज जी भगवान को पाने का कोई उपाय बताइए। आज तक भी वो मुझे बात याद है। उन्होंने कहा, मेरे नाम से परिचित थे, बालकृष्ण ये बताओ भगवान के लिए तुम कितनी बार रोए? सच मानिए शायद उससे पहले मैं भगवान के लिए शायद रोया हूं या नहीं मुझे याद नहीं। उसके बाद में कई दिन तक मैं बहुत रोता रहा। वो बात मेरे दिल में इतनी जाकर के लगी कि भगवान को पाने की बात करते हो, भगवान के लिए तुम कितनी बार रोए हो? उस परमात्मा के लिए इतनी करुणा हो, इतनी ममता हो, इतने हमारी आंखों में अश्रु हो और हमारा मन रो उठे, हे प्रभु मुझे बस तुम ही मिलो, तुम्हारे सिवा मैं कहीं समझौता करने वाले नहीं हूँ। जिस तरह से दुनिया की जो पदार्थ हमें दिया भगवान ने, ये बच्चों को भुलाने के लिए, जैसे माँ छोटे बच्चों से उसको कोई काम करना हो तो खिलौना दे करके वो खेलता रहे, भूलता रहे और वो अपना काम करती रहे, इस तरह से खिलौने भगवान ने हमें ये दुनिया के सारे जो ताम झाम ना, ये सब खिलौने हैं। जो साधक होता है, जो आध्यात्म मार्ग में चलने वाला होता है, वो इस बात को समझता है कि सब खिलौने हैं, ये भूल भुलैये हैं। उन खिलौने में किसी को पद का अहंकार है, किसी को पैसे का अहंकार है, किसी को मान सम्मान का अहंकार है। न जाने कितने खिलौने किस किस के पीछे लगा रखे हैं और उन खिलौने में इतने मस्त हैं। और हम लोग तुलना अपने खिलौने से दूसरे खिलौने की करते हैं कि मेरे पास भगवान ने ये दे रखा, दूसरे के पास ये है। ये कुछ नहीं है। इस जीवन निर्वहन के लिए संसाधन हो सकते हैं, उसके अतिरिक्त आप यदि गहराइयों में जाकर के देखेंगे, ये सिर्फ खिलौने हैं। इन खिलौनों से हम उलझे हुए हैं दुनिया के अंदर। सब कुछ हमने इन खिलौनों पर आश्रित मान करके सब आधार बनाया हुआ है। तो इससे बाहर निकल करके हम बस परमात्मा के लिए, परमात्मा से यही मांगे, प्रभु मुझे तेरे खिलौने से कुछ नहीं लेना, मुझे तुम मिल जाओ, मुझे तुम्हें छोड़ करके कुछ भी नहीं चाहिए, उससे नीचे मेरे लिए कोई समझौता मुझे नहीं करना है। ये भाव आप अपने अंतस में लेकर के जाएं और प्रभु निश्चित रूप से आपके पवित्र उद्देश्य को, आपके संकल्प को पूर्ण करेंगे। प्रभु की कृपा है, संतों का साथ है, आप लोग सब असौभाग्यशाली हैं। भगवान जब चाहेगा फिर हम सब पुनः मिलेंगे और हमारी भी शुभकामनाएं। जो भी हमसे जाने अनजाने में हमने मधुरता से, प्रेम से व्यवहार का प्रयत्न किया, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ, कहीं दोष और त्रुटि हो तो भूल जाना, और हमारे अंदर कुछ दिखाई दिया हो, कोई आपको आचरण में लाने से आपका लाभ होता हो तो ज़रूर आचरण में लाना। समय बहुत हो चुका है। इतना ही कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में भी हम मानसरोवर स्थित परमार्थ मानसरोवर आश्रम में ही रहेंगे और सुनेंगे संत जनों और तीर्थ यात्रियों से पवित्र कैलाश परिक्रमा और इस यात्रा के बारे में उनके अनुभव। लेकिन अभी हम आपसे विदा की अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।